السلام علیکم۔ آج ہم خالدہ حسین کا افسانہ پہچان پڑھیں گے۔ ان کی افسانوی کتاب پہچان میں سے پہچان۔ سب سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور دیکھ کر بھول گئی تھی، مگر جب نصرت نے مجھ سے نمائش میں چلنے کو کہا تو وہ خواب یاد سا آیا، مگر ٹھیک سے یاد بھی نہ آیا۔ اس وقت منع کی بشرٹ پر ڈوری سے پھول بنا رہی تھی اور وہ آرام کرسی میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ کنیز اور بلقیس بھی چل رہی ہیں، کبھی تو گھر سے نکلا کرو۔ نصرت نے پھر مجھے گھر پڑے رہنے کا طعنہ دیا۔ اس طعنے پر ہمیشہ کی طرح پہلے تو میرا جی اڑا، پھر دل ہی میں وہی ہول اٹھا، انتڑیوں میں تیرتا گرم گرم بگولا۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، کیا حرج ہے، انہوں نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ مگر منا، کیا حرج ہے، ساتھ لے جانا، باقی تینوں گھر رہیں گے۔ انہوں نے اینک میز پر رکھ کر ہتھیلیوں سے آنکھیں ملی۔ اتنے میں تائی جی حقہ تازہ کر کے لے آئیں۔ اماں بھی چلی جائیں گی ساتھ۔ وہ گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کے ٹینس کا وقت تھا۔ میں نے سفید نکر اور آدھی آستینوں والی سفید بنیاد نکال کر پلنگ پر رکھی اور چائے کے لیے باورچی خانے چلی گئی۔ تب نصرت نے برقع پہنتے ہوئے کہا، تو کل 5:30 بجے جاؤں گی کنیز اور بلقیس کو لے کر، اور سیڑھیاں اتر گئیں۔ تائی جی حقے کی نئے منہ میں لیے تھالی میں چاول چننے لگیں۔ چائے دم کرتے ہوئے میرے دل میں بار بار ہول اٹھا اور میرا جی چاہا بہا کر نصرت سے کہہ دوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں وہ تیار ہو کر سیڑھیوں تک جا پہنچے۔ میں چائے کی پیالی لے گئی اور کھڑے کھڑے چائے پی کر وہ سیڑھیاں اترنے کو تھے کہ مجھے ان کے سفید پوت کا ڈھیلا تسمہ نظر آیا۔ میں نے جھک کر تسمہ کس کر باندھا اور روز کی طرح مجھ سے مل کر ریکٹ پکڑ کر سیڑھیاں اتر گئے۔ ان کے چوڑے شانے اور مضبوط گردن اور گھنے بال ہر روز مجھے اس طرح نظر آتے تھے، مگر آج ان کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر مجھے یکدم وہ بھولا ہوا خواب یاد آ گیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میں گلی میں چلی جا رہی ہوں اور گلی بالکل سنسان پڑی ہے، یہاں سے وہاں تک دور دور تک نظر نہیں آتا۔ میں اکیلے میں ڈر رہی ہوں کہ اتنے میں سامنے سے وہ سفید کپڑے پہنے ہاتھ میں ریکٹ لیے پسینے میں شراب پور چلے آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دم آتا ہے، مگر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ اس پر میں حیران ہوئی اور برقع اٹھاتی ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں۔ اس پر بھی وہ مجھے نہیں دیکھتے اور میرے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ میں انہیں پکارنا چاہتی ہوں اور میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے بھاگتی ہوں۔ میرے قدموں کی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، مگر ان کا چہرہ بدل چکا ہے، وہ تو کوئی اور ہے، معلوم نہیں کون۔ میں سہم جاتی ہوں۔ اس پر مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید میرا چہرہ بھی بدل چکا ہے۔ پھر میں اپنا گھر ڈھونڈنا چاہتی ہوں، مگر تمام گلی کے مکان ایک سے ہیں۔ اس خواب کے یاد آنے پر مجھے اپنے سینے اور پیٹ میں خالی پن محسوس ہوا اور میرے کان سنسنا اٹھے۔ سیڑھیوں کا دروازہ بند کر کے میں تائی جی کے پاس جا بیٹھی اور منڈے کی بشرٹ سینے لگی۔ یہ تو مجھے شروع ہی سے معلوم ہے کہ ان سیڑھیوں، اس گلی سے باہر وہ کچھ اور ہیں۔ لوگ انہیں کسی اور دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور میں انہیں اس طرح دیکھ اور پہچان نہیں سکتی، اس لیے جب وہ میرے پاس ہوتے ہیں تب بھی اس گلی سے باہر ہوتے ہیں، اور گلی سے باہر میں ان کو نہیں جانتی اور انہیں بھی یہ سب کچھ معلوم ہے، اور وہ اس سب کو ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اکثر ان کا جسم مجھے محض محسوس ہوتا ہے اور میں ڈرتی ہوں، مگر یہ سب کچھ انہیں بھی معلوم ہے اور وہ اس سب کچھ کو ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں تیزی سے مشین چلاتی رہی، مگر جب اب اچانک مجھے اپنے پیٹ کا سیاہ خالی پن چھپنے لگا۔ وہی اندھیروں کو جلانے والا گرم گرم ہول منع کے بعد سے اسی طرح بیٹھے مجھے اپنے پیٹ کا سیاہ خالی پن نظر آنے لگتا اور میں منع سے پہلے کا گرم بوجھ یاد آ جاتا ہے، جب میرے قدم زمین پر جمے سے پڑتے تھے، اور میں نے کبھی ایسا خواب نہ دیکھا تھا جیسا کہ اب دیکھا۔ اس سے پہلے گڈو، نسیم اور روحی بھی تو آئے تھے، مگر ان کا مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، یا شاید منا آخری ہے، اسے سب کچھ یاد ہے، مگر ان
3 के वक्त तो मैं रातों को सो भी लेती थी और अक्सर ताई जी ही आकर उन्हें चुप कराती थी, मगर मुन्ना तो रातों को खर्राटे भी लेता है। तो नींद में मुझे उसके रोने की आवाज़ आती है और जाकर देखती भी हूँ कि एक मुन्ना पड़ा सोता है और एक मुन्ना कहीं चिल्लाता है, और मैं हिसाब करती हूँ कि कहीं मेरा कोई और मुन्ना तो नहीं, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आता मगर मुन्ना कहीं और पड़ा चिल्लाता तो नहीं। ये रोने की आवाज़ कैसी है? और अगर मुन्ना मेरे पास पड़ा सोता और खर्राटे लेता है तो वो कौन सा मुन्ना है जो चिल्लाता है? फिर मैं जागते में हिसाब लगाती हूँ कि देखूँ ये देखो, ये मैं हूँ और ये मुन्ना है और मेरे पास पड़ा सोता है, और इस घर में और कोई मुन्ना नहीं, ना मेरे अंदर ना बाहर। और इस तरह मैं फिर सो जाती हूँ। और मुझे ये भी याद है कि जब मुन्ना मेरे अंदर था, मैंने इस गली के बारे में मैं भी कभी कुछ ना सोचा, न कभी ये गली कभी मुझे यूँ नज़र आई थी जिस तरह अब नज़र आती है। इसीलिए वो दिन रात में 20 बार इस गली से बाहर जाते थे, और ये जानते हुए भी कि इस गली से बाहर वो कुछ और हैं और लोग उन्हें कुछ और तरह देखते और पहचानते हैं, और मैं उन्हें इस तरह देख के पहचान नहीं सकती। मुझे कभी इस गली और उसके बाहर का ख्याल यूँ ना आया था, शायद इसलिए तब मैं खुद बोझल थी और सहन और कमरे और तमाम घर मुझसे बाहर जाता था, और एक मोटी तहदार नींद मुझे आए रहती थी। मगर मुन्ने के बाद जो दिन गुजरते जाते मैं हल्की होए जाती हूँ। देखने में नहीं, देखने में तो मैं उसी तरह दोहरे परिंदे की हूँ, और मैं इस दोहरे परिंदे के रोज़ आईना में देखती हूँ। देखने में नहीं, मालूम नहीं कहाँ से और कैसे मेरा बोझ बढ़ता जा रहा है। कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि मेरे पाँव ज़मीन से उठते जा रहे हैं। इस बात पर मुझे कभी हंसी भी आती है, क्योंकि कल ही रूही कह रही थी, अम्मा आपकी कमर फैलती जा रही है, और ये भी एक रोज़ कह रहे थे कि ज़रा खुली बाहर आए तो सुबह मुँह अंधेरे सैर को जाया करेंगे, जिस्म चुस्त रहता है। अम्मा अम्मा मुन्ने ने चुपके से आके मेरे गले में बाहें डाली और मशीन चलाते जाते मेरे हाथ रुके। कहाँ गए थे? उसके नन्हे हाथों की गीली गर्मी मेरे गर्दन में जज्ब होने लगी। चीज़ी मुझसे हटकर वो ताई जी के गले से जा लिपटा। इधर आ मुन्ने, ये पहन कर दिखा। मैंने उसे बुशर्ट पहना के देखी और उसे अपने सामने देखकर मुझे हैरानी होने लगी कि अब से कुछ बरस पहले वो मेरे अंदर था, और मेरे अंदर था मेरा ही बोझ, और गौर करने पर मुझे उसकी शक्ल नई सी लगने लगी। इसलिए मैंने अपनी नज़र फ़ौरन हटा ली। रात के जब वो घर लौटे तो खाना खिलाते हुए मैंने उनसे कहा, नुसरत से यूँ कह दिया, मेरा जी नहीं चाहता जाने को। दरवाज़ा तोड़ते रुके और फिर अपनी वही लापरवाह हंसी हंसे, जिससे मुझे हमेशा यूँ लगता है जैसे उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और वाकई ऐसा होता भी है, क्योंकि पास बैठे हुए वो अपने को मुझसे अलग किए होते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मेरे जाने ना जाने के मुतालिक कुछ कहेंगे, मगर वो हंसकर खामोश हो रहे। चुनाचे मैंने खुद ही कहा, मालूम नहीं क्या बुरी आदत है मेरी, बाहर जाते हुए हौल उठने लगता है। सर की खराबी का इलाज? उन्होंने तौलिए से हाथ पोंछकर कहा। फिर रेडियो को बटन दबाकर मेज़ पर से किताब उठाई। दलान में नसीम और गुड्डू मालूम नहीं किस बात पर लड़ रहे थे। क्या हुआ है नसीम? उन्होंने भारी गूंजी आवाज़ में पुकारा, और दलान में बिल्कुल खामोशी छा गई। सिर्फ ताई जी के हुक्के के गुड़ बाकी थे। उन्होंने सिगरेट सुगलाया और कस ले के किताब पढ़ने लगे। मैंने डर के उनके चेहरे से नज़र घटा ली। गौर से देखने पर उनकी शक्ल भी नई सी लगती थी। अगले रोज़ नुसरत बिल्किस और कनीज़ को लेकर आई और मैं ताई जी और मुन्ने के साथ निचली गली में उतरी। गली में उतर कर ना चाहते हुए भी मैंने पलट कर अपने मकान को देखा, और उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, स्लेटी छज्जा और सुर्ख दीवारें नई नज़र आईं। मैंने मजबूती से मुन्ने की उंगली थामी और हम पाँचों यानी ताई जी, बिल्किस, कनीज़, नुसरत और मैं कदम एक साथ चलने लगे, यहाँ तक कि गली ख़त्म होगी। बाहर सड़क पर ताज़ा छिड़काव हुआ था और सुरमई सड़क की आधी चुड़ान गीली थी और आधी खुश। सामने नाला दूर कच्चे में उतर कर आखिरी मकानों तक चला गया था, और दित्ते जाम की दुकान के साथ चाय वाली दुकान खुली थी, जिसमें एक तरफ जेवरों से सजी किसी एक्ट्रेस की रंगीन तस्वीर लगी थी। मुझे कुछ याद नहीं आया था।
इस तस्वीर के साथ शीशे में जुड़ा रंग बिरंगे हरूफ का कलमा शरीफ था और ये सुनहरे चौखटे में आईना। इस वक्त रेडियो बड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। मैंने ये सब कुछ इसलिए देख लिया कि नुसरत ने वहाँ तांगे के इंतज़ार में रुकने को कहा था। मुन्ने की उंगली मैंने ज़ोर से थाम रखी थी। अब उसके हाथ और मेरे हाथ का पसीना मिलकर एक हो गया था। मैंने भी तांगे की तरफ दाईं तरफ नज़र दौड़ाई। सामने से एक जनाजा आ रहा था। काली चादर पर मोतिया और गुलाब की चादर पड़ी थी और जंगले वाले पलंग में से कोहरे लोठे की खड़खड़ाती सफ़ेदी छलकती थी। ताई जी ने फ़ौरन बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा। उधर दूसरों ने कंधा देने वाले की जगह ली। मुन्ने ने मेरे हाथ को और ज़ोर से पकड़ लिया। कौन मर गया है माँ? उसने बुरके की जाली में से मेरी आंखों को ढूंढ कर कहा। कोई नहीं, मैंने कहा और जल्दी से कलमा पढ़ा। चाय की दुकान में जड़े आईने में स्याह चादर और मोतिये की सफ़ेदी सुर्खी पल भर को तैरी और गायब होगी। अब सिर्फ मोतिया गुलाब की खुशबू पीछे रह गई थी और ये खुशबू उन गजरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो वो कभी कभी मेरे लिए लाया करते थे। क्यों भाई चलोगे? नुसरत ने तांगे को ठहरा लिया था। चलो आपा जी, पर 5 सवारियाँ हैं। खैर, नुसरत और बिल्किस आके बैठ गई और मैं ताई जी कनीज़ और मुन्ने के साथ पीछे। कुछ दूर जाकर मुन्ने को मैंने गोद में उठा लिया क्योंकि वो चमड़े की चिकनी सीट पर से बार बार फिसले जा रहा था। गोद में बिठाकर मैंने उसके गिर्द अपनी बाहें डाल ली। जब हम नुमाइश की सड़क पर पहुंचे तो हम ऐसे बेशुमार तांगे और मोटरें इस सड़क पर चले जाते थे और बेशुमार आदमी, बच्चे और औरतें फुटपाथों पर रवान थे। यहाँ से वहाँ तक आदमियों का सैलाब था। तौबा है, किस कदर आदमी कीड़ों की तरह चले जाते हैं। ताई जी ने हंसकर कहा। तो और क्या, कभी कभार ऐसे मौके आते हैं। कनीस ने खुश होकर जवाब दिया। पहलू बतला। कनीस मालूम नहीं ठीक से क्यों नहीं बैठती थी। बेचैनी से पहलू बतले जाती थी। कई बार उसकी कोहनियाँ मुझे लगीं। बिल्कुल चींटियों की तरह कितारें लगती हैं। देखना रशीदा, ताई जी ने मुझे ठोका दिया और मैंने देखा कि वाकई आदमी चींटियों की कितारों की सूरत में चले जा रहे हैं। चींटियों की अपनी कोई पहचान नहीं होती। एक चींटी दूसरी चींटी से अलग क्यों कर की जा सकती है? खुद चूंटियाँ भी शायद एक दूसरे को ना पहचानती हों और हम सब भी चूंटियों की तरह चले जा रहे थे। मुझे इस बात पर हंसी आ गई और मैंने गौर से देखा कि इन स्याह बुरकों में से किसी की कोई भी पहचान नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस ख्याल से मेरी कमरे में चूंटियाँ सी हींने लगी और मेरे पेट का हिंदेरा खाली बन नज़र आने लगा। मुझे फिर मालूम हुआ कि मैं बेहद हल्की होती जा रही हूँ और मेरे कदमों का बोझ नहीं। मैंने मुन्ने को अपने साथ भेज लिया। अब नुमाइश का सामने थी और रंग बिरंग बत्तियों का शहर जगमगाता था। कहीं बत्तियाँ सत लड़े हारों की तरह झूलती थीं और कहीं गोल गोल छतरियों के रंग घूमती थीं। कहीं पर उनका आबशार गिरता है। तांगा कुछ अलवान से नीचे उतर के जगह रुक गया और हम नीचे उतरे। नुसरत तेज़ी से चलती हुई टिकटों की खिड़की तक पहुंची और हम अंदर जाने वाले दरवाजे से दाखिल हुए। नुमाइशगाह के अंदर आदमियों का समुद्र ठाटे मारता था। देखा, बिल्किस ने खुश होकर कहा। कितनी रौनक है। हाय है कैसा अज़्दहाम है। ताई जी के पास में खुशी भी थी और खौफ भी। अच्छा, अब इधर बाएं हाथ से शुरू करो। नुसरत एक बार पहले भी नुमाइश देख चुकी थी। हम अभी शीशे के काम वाली दुकान के करीब पहुंचे ही थे कि ऐलान हुआ। मौत का कुआं, मौत का कुआं। हजार बस 10 मिनट में हैरान और परेशान करने वाला करतब शुरू होने को है। अम्मा, बुने ने मेरा बुरका खींचा। चलो कुआं देखें। अच्छा देखो, मेरी उंगली ना छोड़ना। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा क्योंकि मेरे दोनों तरफ से आदमी खोए से खोआ चलाते गुजर रहे थे। मगर मुन्ना ठकने लगा। कुआं। अच्छा चलो पहले मुन्ने को दिखा लाओ। नुसरत ने लकड़ी के उस गोल खॉल की तरफ कदम उठाया जिसके साथ लकड़ी ही का एक जीना चाहता था और ऊपर उस खॉल के दहाने पर आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हो रहे थे। उसके करीब ही लकड़ी के चबूते पर स्टूल पर गहरी सुर्खी और काजल से सजी तंग काली पतलून सुर्ख जम्पर पहने एक औरत बैठी थी जिसके गले में सफ़ेद रंग रुमाल बंधा था और बाल छत्ती की तरह फूले थे। वो लोगों को देखते मुस्कुराती थी और सिगरेट के कचरे के धुआं आसमान की तरफ छोड़ती थी जिसके छल्ले के छल्ले उसके मुंह से निकलते थे। उसके साथ ही एक बौना अपने हाथों में
घुंघरू बांधे, बड़े घेर की शलवार और जर्द कुर्ता पहने फिल्मी गानों पर नाच रहा था। उसका लंबा करख्त चेहरा उसकी कमर तक लटकता नजर आता था, और जब वो चक फेरी लेता तो पुष्ट पर की कोहान पहाड़ी की तरह उठी नजर आती थी। उसके हाथ छोटे, चौड़े और लंबा में बेहद छोटे थे, जैसे किसी ने उंगलियां काट डाली हों, और उनमें बंधे घुंघरू वो लड़जा कर छनकाता था। उसकी आंखों में भरा काजल रुखसारों पर फैल आया था, और लंबी घनी शराब मूछों पर उसके नथने तेजी से फुड़फुड़ाते थे। अक्सर वो नाचते नाचते घूम कर सुनहरी बालों वाली औरत को देखता और मुस्कुराता था, और मुस्कुराते में उसके दांत लंबे और चौड़े नजर आते थे। मैंने देखा कि वो सबसे अलग था, वो इंसानों में खो नहीं सकता था। मगर इससे पहले कि कुएं तक पहुंचते रास्ते के तालाब पर बेतहा भीड़ देखकर बिल्किस रुक गई। ये क्या है? बिल्किस ने उचक कर देखने की कोशिश की। तालाब के किनारे खड़े सब लोग आसमान की तरफ देखते थे। हमने ऊपर नजर उठाई और आसमान से बातें करती लोहे की सीढ़ी के सर पर एक आदमी मोटे मोटे तहता कपड़े पहने खड़ा था। वो आदमी इतनी बुलंदी पर था कि जहाँ पर रोशनियाँ पीली पड़ जाती हैं, उसे देखने के लिए हम सबको गर्दन बहुत पीछे तक झुकानी पड़ी, यहाँ तक कि मुझे अपनी गर्दन के मुन्ने की झुपन महसूस होने लगी। ये क्या है? मुन्ने ने मेरा बुर्का खींचा। मैंने उसे गोद में उठा लिया। देखो, ये आदमी आग लगाकर छलांग लगाएगा, मैंने उसको बताया। सीढ़ी पर खड़े आदमी ने बोतल का तेल अपने ऊपर छिड़का। उसके बाद सबको झुककर सलाम किया। मेरे साथ खड़ी मोटे शीशों की ऐनक वाली औरत ने अपनी ऐनक नाक पर दुरुस्त किया, और उसके साथ खड़े बच्चे ने कहा, अब क्या होगा? अब क्या कर रहा है? ऐनक वाली औरत ने अपना थका सर झुका कर कहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अपना थका सर फिर ऊंचा करके देखने लगी, और शीशों के पीछे उसकी आंखें बेहद धुंधली थीं। सीढ़ी पर खड़े आदमी ने माचिस की जलती तीली अपने कपड़ों से छुआई, और पल भर में वो आग का बगुला बन गया। उसके बाद बगुला अपने मकाम से गिरा और धड़ाम से तालाब में आ गिरा। तालाब के गंदे पानी पर तेल के छकते नाचने लगे, और कुछ आदमी किनारे पर तालाब से निकलते उसको आदमी को सहारा देने के लिए आगे बढ़े, और देखने वाले सब के सब अपनी राह चलती है। बस अम्मा, कुआं। मुन्ने ने मेरा बुर्का खींचा। मगर अब मुझे कुछ अपना आप ठीक से याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी चारों तरफ बेशुमार लोग थे, और सुबह इस पौने और उस आदमी के जिसने आग लगाकर छलांग लगाई, और इस औरत के जो लकड़ी के चबूतरे पे बैठी थी और एक करतब अपने अंदर रखती थी, किसी के पहचान नहीं थी। मेरी अंतड़ियों में बार बार वो गर्म हॉल उठ रहा था। शायद मुझे भूख लग रही थी। अब हम मौत के कुएं की तरफ बढ़े, मगर उस वक्त तक शो ख़त्म हो चुका था, और दूसरे के लिए भी तमाशाई शुरू हो रहे थे। बौना आप फिर नाचने लगा, मगर वो सुनहरे बालों वाली औरत नहीं थी। करीब शामियाना था, जिसके दरवाजे पर सफ़ेद पर्दे पर बड़े बड़े सौफ हरूफ में असली लड़कियों वाला सर्कस लिखा था, और निकर पहने लड़कियों की तस्वीर बनी थी। कनीस इस शामियाने के करीब रुक गई। देखोगी? नुसरत ने पूछा। अभी कनीस ने कुछ जवाब ना दिया था कि खाकी पलतून और सफ़ेद बुशर्ट पहने गंजे सर वाला एक आदमी आइए कहता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। उसकी चपचपाती आंखें नकाबों के पीछे हमारे चेहरे टटोल रही थी। एक मुर्के से उसकी नज़र दूसरे की तरफ और दूसरे से तीसरे की तरफ जा रही है। बस शुरू होने वाला है, सिर्फ 8 आने। कुछ लोग इस तरफ पर्दे से अंदर जा रहे थे। फिर पर्दा ज़रा सा उठा तो कुर्सियों की ताल से परे बीच मैदान में छोटी छोटी लड़कियां सुर्ख निकर और छोटे से नीले चंपल पहने खड़ी थी। उनके रंग सांवले थे और आंखें फैली सूखे बाजू, सूखी टांगों के दरमियान उनकी पसलियों के ढांचे सांस लेते थे। और एक लड़की उल्टी होकर अपनी टांगों और हाथों के बल कमान की तरह खड़ी थी, जबकि दूसरी पसलियों के मेहराबदार पंजरों पर कूदती थी। अचानक मुझे अपनी पसलियों में धमक महसूस हुई और मुन्ने के पसलियों में भी। मैंने मुन्ने के पसलियों को टटोला और फौरन उससे बात से हट गई। अम्मा, कुआं। मुन्ने ने फिर मेरा बुर्का खींचा। अच्छा,
پھر ابھی موت کا کنواں شروع ہونے میں دی تھی اور قریب ہی ہنڈولوں میں سواریاں پھر رہی تھیں۔ چلو پنگوڑے میں بیٹھیں۔ نصرت نے مجھے ہنڈولوں کی طرف کھینچا۔ نہیں، منا ڈرے گا۔ ارے میرے پاس چھوڑ دینا، تائی جی نے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر کہا۔ میں نے بھی کچھ فیصلہ نہ کیا تھا کیونکہ بہت عرصے پہلے کوار پتے میں جھولا ہنڈولا یاد آ رہا تھا اور وہ ہال جو اس کی اتران کے وقت دل میں اٹھتا ہے، مگر اتنے نصرت ٹکنے پہ ہی لے آئی۔ ہم چاروں ہنڈولے میں بیٹھ گئے۔ ابھی وہ پنگوڑے میں خالی تھے اور ان میں سواریوں کو بیٹھنا تھا۔ خالی ہنڈولا زمین کی طرف آیا تو ہم سب سے اوپر پہنچ گئے۔ اب سب بتیاں ہم سے اونچی تھیں، سب سے نیچے تھیں اور ان بتیوں کے باہر تاریک شہر پھیلا تھا۔ نمائش کا ایک کھلونا نظر آتی تھی اور آدمی رینگتے کلبلاتے کیڑے۔ اوپر پہنچ کر مجھے اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا ڈر آیا۔ میں نے نیچے ہجوم میں منّے کو پہچانا چاہا، مگر مجھے اپنے سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں میں ان کو کس سمت پر چھوڑ کر آئی تھی۔ میں نے موت کا کنواں ڈھونڈنا چاہا اور وہاں سے مجھے سمت کا اندازہ ہوا۔ میری نظر بالآخر ایک سفید برقعے پر رکی جس کے اندر تائی جی تھی اور اس کے ساتھ منا جیسے نیلی بشرٹ اور نکر پہن رکھی تھی۔ میرا خیال تھا منا مجھے ضرور دیکھے گا، مگر اس نے میرے طرف نگاہ نہ اٹھائی۔ شاید وہ غباروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پکارا، منّے منّے، مگر اس تک میری آواز نہ پہنچی اور معلوم نہیں اس وقت کہاں سے مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ منا ایک ہی سانس میں بے تحاشا چلائی جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا کہیں ایسے اجتماع میں میرا ایک منا رو رہا ہے۔ مگر میں نے حساب کیا کہ اس کے علاوہ میرا کوئی منا نہیں، نہ ہی میرے اندر نہ ہی باہر۔ میرا منا تو نیچے کھڑا تھا، غباروں سے کھیلتا تھا۔ تو پھر یہ کون منا تھا جو روتا تھا؟ اب ہنڈولا چلنے لگا، نیچے اوپر دنیا چکر کھانے لگی اور ہر بار اس کی اتران پر گول ہال میری انتڑیوں کو مسلنے لگا اور مجھے اپنے پیٹ کا خالی پن بار بار نظر آنے لگا۔ جب ہنڈولا اترتا تو سب کی سب سوائیاں خوف اذیت سے ملی جوئی چیخیں مارتی اور چیخ کے بعد ہنسنے لگتی۔ نصرت، بلقیس، کنیز بے تحاشا ہنس رہی تھی، مگر میں چکر کھاتے ہنڈولے میں منّے کو ڈھونڈتی رہی کہ وہ میری طرف دیکھتا ہے کہ نہیں، مگر اس نے ایک بار بھی نظر نہ اٹھائی۔ جب ہنڈولا رکا اور ہم اترے تو میں نے دیکھا کہ تائی جی تو اسے بالکل مختلف سمت بیٹھی تھیں جہاں میں ان کو دیکھ رہی تھی اور منا ان کی گود میں بیٹھا ٹافیاں کھا رہا تھا اور میں حیران ہو کے چاروں طرف دیکھ رہی کہ میں کس کو دیکھ رہی ہوں۔ بعد میں بھی میری نظر ان کو ڈھونڈتی رہی، مگر وہ بچہ عورت مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ اب موت کا کنواں شروع ہونے کو تھا۔ لکڑی کے چبوترے پر سنہرے بالوں سرخ جمپر والی عورت بیٹھی سگریٹ کی کس لے رہی تھی اور مسکراتی تھی اور پونک کمر تک لٹکتا منہ اور پہاڑی ایسے کوہاں لیے کٹے ہاتھوں سمیت ناچ رہا تھا۔ چلو، بلقیس لکڑی کی سیڑھی کی طرف بڑھی اور منّے کا ہاتھ پکڑ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہم سب لکڑی کے خول کے دہانے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ نیچے گہرائی میں 2 موٹر سائیکلیں رکھی تھیں، ایک سرخ دوسری سبز۔ یہ کنواں ہے؟ منّے نے پوچھا۔ ہاں۔ اس لکڑی کے خول کا چھوٹا سا دروازہ کھلا اور 2 آدمی چست پتلونیں اور آدھی آستینوں کی سفید بنیان پہنے داخل ہوئے۔ پھر سرخ جمپر اور کالی پتلون پہنے سرخی سے سجی سنہرے بالوں والی عورت آ گئی اور ان دونوں کے ساتھ ہنس کے باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور ان کے شور سے سب اوپر دیکھنے والوں کی اور پوری نمائش کی آوازیں مدھم بڑھ گئیں۔ وہ دونوں کچھ دیر تک نیچے زمین پر گول گول چکر کاٹتے رہے۔ اس کے بعد سبز موٹر سائیکل کے پیچھے سنہرے بالوں والی عورت بیٹھ گئی اور دونوں موٹر سائیکل تیز چکر کھاتے لکڑی کی دیواروں پر چڑھ آئے اور لکڑی کی دیواریں اس رفتار کے ساتھ جھول کھانے لگیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا کہ سائیکلیں اس خول سے باہر آن گریں گی اور جب وہ دہانے کے قریب پہنچی تو سب پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر سنہرے بالوں والی عورت نے اچانک مرد کی کمر سے ہاتھ کھینچ کر بازو ہوا میں پھیلا دیا اور گردن پیچھے ڈال کر مسکرانے لگی۔ اس کی گردن کی رگیں اتنی تنی تھیں اور بھورے بھورے دانت بجلی کی روشنی میں چمکتے تھے۔ اس طرح وہ کنویں کے چکر لگاتی رہی۔ اوئے توبہ کی آوازیں چاروں طرف سے آتی ہیں۔ میرے دائیں پیر سیاہ برقعے کھڑے ہیں، اتنے قریب کہ مجھے خود بھی یاد نہ آ رہا تھا میں کون سے برقعے
यूं भी मोटरसाइकिलों की आवाज़ पर मेरा सर हल्का कागज़ हो गया था और तमाशे के शुरू होते होते हजूम इतना बढ़ गया था कि मुझे अपने आप पर कितने ही इंसानों को बोझ महसूस हो रहा था। और जब कोई और सांस लेता तो मुझे लगता मैं सांस ले रही हूँ। जब मोटरसाइकिलें ज़मीन पर आ रुकी और इन तीनों ने झुक कर सबको सलाम किया और लकड़ी के छोटे से दरवाजे के रास्ते से बाहर निकल गए और कुआं खाली रह गया, तो सब ने लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। हमने अपने से पहले हजूम को उतर जाने दिया। जब ज़रा भीड़ कम हुई तो पहले नुसरत के बाद बाकी सब ने उतरना शुरू किया। पहले सीढ़ी उतरते हुए मैंने मुन्ने का हाथ पकड़ को उतारना चाहा, मगर मुन्ना कहाँ था? मुन्ना? मैंने चारों तरफ देखा, मुन्ना नहीं था। मैंने अपने से और सबसे कहा, मुन्ना कहाँ है? अरे मुन्ने, ताईजी ने परेशान होकर चारों तरफ देखा। फिर हम सब ने बीचों पार पूरे कुएं के चक्कर लगाए, मगर मुन्ना कहीं नहीं मिला। मुन्ना कहाँ है? मैंने फिर कहा, मगर मुन्ना कहीं नहीं था। इसके बाद हमने दुकान मुन्ने को नीले कपड़े पहने हैं ना, सुर्ख बूट? बिल्किस ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। अल्लाह हाफिज़। ताई जी मुझे दिलासा दिए जाती नहीं, पर हर दुकान में मुझे नीले कपड़े और सुर्ख बूट नज़र आए, मगर मुन्ना कहीं नज़र नहीं आया। और इंसानों के हजूम में उसे ढूंढते ढूंढते मुझे शक होने लगा, मुन्ना था भी या नहीं। क्या वह सचमुच था? क्या मुन्ना था और खो गया, या वो था ही नहीं और खो गया? अचानक मुझे चलते थे अपना बोझा लगने लगा, जैसे तमाम नुमाइश का मुझसे भर गई हो। मेरे पेट का अंधेरा खालीपन भर चुका था। क्या मुन्ना था मुझसे अलग? मैंने सोचा, या मैं नहीं हूँ अब मुन्ना था, और अगर हम दोनों अलग अलग हैं तो फिर खो कैसे सकते हैं? नुसरत ने कहा, रशीदा, नुमाइश वालों के दफ्तर चलो, वहाँ से ऐलान करवाते हैं। यूँ भी खोए हुए बच्चे वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। हम बाहर जाने वाले दरवाजे के करीब छोटे से कमरे में पहुँचे। सुर्ख पोश वाली मेज़ के गिर्द कुर्सियाँ डाले 4 आदमी बैठे थे। हम उनके सामने जा खड़ी हुई। चीफ फरमाई। उनमें से आने वाले ने कहा, हमारा बच्चा खो गया है। नुसरत ने कहा, ओफो, तशरीफ़ रखिए। उसने मेज़ की दराज से कॉपी पेंसिल निकाली। कैसा बच्चा? उम्र, कपड़े, शक्ल शुरू की निशानी, नाम बोल सकता है? जब मैंने याद करना चाहा तो मुझे कुछ भी याद ना आया, मगर ताईजी ने उनको बहुत कुछ बताया। फिर ऐनक वाली बहुत सी देर तक ऐलान करता रहा और नुमाइश का हमें उसकी आवाज़ फैल गई। उसने हमसे इंतज़ार करने का, हम बैठ रहे और ताईजी बहुत कुछ पढ़ती रही और कनीस और बिल्किस और नुसरत मुझे दिलासा देती रही हैं। और दफ्तर में बैठा आदमियों ने मुझे चाय पिलाना चाहिए, मगर चाय का एक ही घूंट चिपकती करवाहट बनकर मेरे हलक में अटक गया और मैं खिड़की से बाहर इंसानों का हजूम देखने लगी। सिर्फ बौना नहीं खो सकता। आँख लगा के तालाब में कूदने वाला आदमी और मौत के कुएं के सवार और असली ही लड़कियों वाला सर्कस की लड़कियां, बाकी किसी की पहचान नहीं। मैं जब वो ख्वाब याद आया कि मैं घूम कर देखती हूँ और तमाम करीब मकान एक से हैं, मगर अचानक मैं देखा कि सामने दरवाजे में मुन्ना खड़ा है। मैंने बोलना चाहा और बोल न सकी, अपनी जगह से हिल भी ना पाई। अल्लाह तेरा शुक्र है, ताईजी लपक गई। किधर गया था मुन्ने? हैं, कौन छोड़ गया है? कनीस ने मुन्ने का हाथ पकड़ कर कहा, हैं वो? मुन्ने ने उंगली से खाली दरवाजे की तरफ इशारा किया और जेब से टॉफ़ियाँ निकाल कर गिनने लगा। मैंने मुन्ने का हाथ पकड़ा और नुमाई से बाहर चले आए। कहाँ रह गए थे? ताईजी ने किया। हैं, कहीं नहीं। मुन्ना अब मेरे गोद में बैठा था। मैं तो अम्मा की उंगली पकड़े चल रहा था। फिर जब आगे जाकर मैंने अम्मा को देखा तो वो कोई और था, अम्मा नहीं थी। वो कौन थी? मैंने मुन्ने से पूछा। पहले अम्मा थी, फिर आगे जाकर नहीं थी। नन्ही जान, शायद बुरके के भुलावे में चला गया, बिल्किस ने कहा। मगर धुंधली सड़क का सफ़र तय करते हुए मुझे पीछे नुमाइशगाह से मुन्ने के रोने की आवाज़ आती रही, जबकि मुन्ना मेरी गोद में बैठा टॉफ़ियाँ खा रहा था। वो कौन थी? अपनी गली में पहुंचकर जबकि काली चादर पर पड़े मोतिया गुलाब की खुशबू भी वहाँ ठहरी थी और चाय की दुकान में एक्ट्रेस इसी अंदाज से ज़ेवरों से सजी हंसी थी और एक से मकानों में एक सी रोशनी भरी थी। मैंने पूछा और मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने पूछा और रात के अंधेरे में मैंने
اندھیرے میں جب کہ میں اور منا تنہا تھے، میں نے پوچھا وہ کون تھی؟ پہلے اماں تھی، پھر نہیں تھی۔ منا صدیوں تک یہی جواب دے گا۔